Hello everyone, I am Rinku, working as an assistant professor in Department of Management in RPIT Technical and Medical campus. Today we are discuss about the topic that is formation of a company. Stage 2, incorporation of registration of a company. Incorporation of a company is second stage of a company formation. It is effected by the registration with the registrar of a company. After the completing the promotional work and before getting the proposal, company actually registered at the promoter take of the following preliminary step: to ascertain a registrar of a company, to get a letter of intent, to fix underwriting and brokerage and banker, to get the memorandum and article of association prepared by and printing. First, preliminary activity. A promoter has to perform following preliminary activity before of the incorporation of a company. First, deciding the kinds of company like private company, public company, one-man company, foreign company, holding company, subsidiary company, etc. Second, deciding about the registered office of a company, ROC, registrar of a company. Company, whatever the name in which a new company is to be starting available or not. Third, selecting and reserving the name of company. Fourth, to getting important document prepared like memorandum of association, article of association, prospectus, etc. Fifth, obtain particular and declaration signature of the subscriber to memorandum of association. कि सबसे पहले हमारा जो प्रिलिमिनरी एक्टिविटी के इसके अंदर प्रमोटर जो वर्क करता है वो हमारे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर जो हमारे सिग्नेचरी जो अथॉरिटीज होती हैं उनको डिसाइड करना, उनको सेलेक्ट करना, उनको डिक्लेयर करना कि कहाँ पर साइन करने हैं और कैसे साइन करने हैं. Obtaining the particular DIN, affidavit and written consent of the first डायरेक्टर कि जब हमारा फर्स्ट डायरेक्टर सेलेक्ट किया जाएगा उससे रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट है, जो पर्टिकुलर जितनी भी हमारी जो फॉर्मेलिटीज हैं, चाहे वो एफिडेविट से रिलेटेड हो, चाहे वो रिटर्न कंसेंट हो, वो उनसे ले ली जाती है. Obtaining the approval of the secretarial regulator and obtaining the digital signature of promoter and prospective director. Second stage, application of the registration and filling the document with the registrar. An application of incorporation of a company shall be filled with the registrar within whose judiciary of the registrar office of a company is proposed to be stipulated. The prescribed form along with the fee as the providing in the company registration office and fee rule act 2014 form of the registration of a company. Document टू बी फिल्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन कि जो हमने 2014 एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमें बेसिक जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो फाइल के लिए चाहिए, वो कौन कौन से हैं. सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब द वेरियस डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन टू बी फिल फाइल विद द ROC रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ ए न्यू कंपनी एज ए अंडर. कि हमें जब भी हम न्यू कंपनीज बनाते हैं एक रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी के अकॉर्डिंग हमें फाइल को फिलअप करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो नेसेसरी चाहिए सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग. फर्स्ट वन MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूली साइन एंड वेरीफाइड कि हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं उनसे साइन होने चाहिए और वेरीफाइड होने चाहिए. सेकंड, डिक्लेरेशन बाय द प्रोफेशनल कि जितने भी हमारे जो प्रोफेशनल जो अथॉरिटीज होते हैं, जो डिग्निटीज होती हैं, उनसे डिक्लेरेशन लेके आने. थर्ड, एफिडेविट फ्रॉम द ईच सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर NIC 09 कि हमारा जो भी फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा उसमें जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर सिग्नेचर करते हैं, उनसे एफिडेविट लेना पड़ेगा कि यस हम इसको फर्स्ट डायरेक्टर के तौर पर हम इसको अपॉइंटेड कर रहे हैं. फॉर एड्रेस ऑफ द कोरस्पॉन्डेंट एंड कम्युनिकेशन. उसके बाद कंपनी से रिलेटेड जितना भी जो एड्रेस है, जो हमारे प्रमोटर हैं, जो हमारे सिग्नेचरी बॉडीज हैं, उन सभी का एड्रेस और उनके कम्युनिकेशन एड्रेस उनको फुलफिल कराना होता है. पर्टिकुलर ऑफ ईच सब्सक्राइबर विद द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उनका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए. पर्टिकुलर ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर विद द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. नेक्स्ट, पर्टिकुलर इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर इन अदर फर्म एंड बॉडी ऑफ कॉर्पोरेशन कि बेसिकली इसके अंदर बताया जाता है कि जो डायरेक्टर है, जो फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा वो बेसिकली किस तरीके से है. क्योंकि वन टाइम में एक डायरेक्टर 20 कंपनीज के अंदर एज ए डायरेक्टर क्या कर सकता है, अपॉइंटेड रह सकता है. कंसर्न टू एक्ट एज ए डायरेक्टर उसे कंसेंट ली जाएगी एंड कॉपी ऑफ द लेटर कन्फर्मिंग रिजर्वेशन ऑफ द नेम. जो हमने कंपनीज का नेम रिजर्व किया उसकी कंफर्मेशन लेटर लेंगे. एंड पावर ऑफ अटॉर्नी टू मेक ऑफ द करेक्शन कि उसके अंदर जो करेक्शन है उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी लेंगे. एंड लास्ट वन, पेमेंट ऑफ ए फी, उस पेमेंट की फी करेंगे. ये सभी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद
फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को हम दीज डॉक्यूमेंट शुड बी फाइलिंग with the registrar within the 60 day of the confirmation and reservation name of a company। यदि हम कंपनीज का नाम रिजर्व कर लेते हैं या कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, विद इन 60 डेज के अंदर वो सभी डॉक्यूमेंट के साथ, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में वो फाइल सबमिट करनी होगी, बिकॉज नेम इज ए वैलिड फॉर 60 डेज ओनली, क्योंकि नाम हमारा जो हमने डिसाइड किया है, जो नेम डिसाइड किया है, वो वैलिड होता है ओनली 60 डेज के लिए। Next, maintaining and preserving the all document at a registrar office। The Company Act 2013 impose a duty of every company registered under this act। जो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग और 1956 के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड होती है, उनके लिए एक ड्यूटी है कि इट शैल बी मेंटेन एंड प्रिजर्व ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड कॉपीज ऑल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, की जितने भी हमारे जो रजिस्टर्ड ऑफिस हैं उनसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी की प्रॉपर तरीके से कॉपीज रखे, डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन रखे एज द ओरिजिनल फिल विद द रजिस्टर टिल इट्स डिसोल्यूशन अंडर द एक्ट की सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। थर्ड, सिक्योरिटी एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद सिक्योरिटी की जाएगी। रजिस्टर शैल बी सिक्योरिटाइज द डॉक्यूमेंट, कि जब हम फाइल सबमिट करा दी हमने विद इन 16 डेज के अंदर, तो रजिस्ट्रार क्या करता है, उन सभी डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, सिक्योरिटी करेगा, उनको वेरीफाई करेगा। आफ्टर द रिसीविंग द एप्लीकेशन एंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द रजिस्ट्रार शैल बी सिक्योरिटाइज ऑफ द डॉक्यूमेंट। Rectification of the in case of minor defect, if these are minor defect to document, the registrar may be send it authorized person to for rectification। अगर कोई माइनर सा डिफेक्ट आता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, मान के चलो अगर हमारे पास एमओई है, मेमोरेंडम ऑफ सेशन पे हमारे एक सब्सक्राइबर के साइन रहते हैं या डायरेक्टर का कंसेंट लेटर रहता है, तो उन सभी को वो क्या करेगा, रेक्टिफिकेशन के लिए अथोराइज जो पर्सन है उसको क्या कर देगा, सेटबैक कर देगा। रिटर्न इन केस ऑफ मेजर, अगर मेजर है या मेटेरियल डिफेक्ट है कि कोई इंफॉर्मेटिव जो फैक्ट है वो हमने डिस्क्लोज नहीं किया प्रोस्पेक्टस के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, तो उससे रिलेटेड वो क्या करेगा, रिटर्न दी ओल्ड डॉक्यूमेंट, कि जितने भी जो हमने फाइल सबमिट कराई थी वो सभी को क्या कर देगा, रेक्टिफिकेशन के लिए उनको रिटर्न कर देगा। अगर माइनर केस है तो रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ उन्हीं को ही वो रेक्टिफिकेशन के लिए अथॉरिटीज को साइन कर देगा, आगे सेंड कर देगा। बट अगर उसके अंदर मेटेरियल फैक्ट अगर हमारा है और मेजर अगर है, मेजर डिफेक्ट है, तो उसको सभी डॉक्यूमेंट को वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा फॉर द रेक्टिफिकेशन। रिफ्यूजल टू रजिस्टर ऑफ on lawful ground, registrar may be refused of a register if a company only on lawful ground, otherwise he may be compelled to register। अगर उसके अंदर कोई डिफेक्टेड है, अगर वो चाहता है कि ये लॉफुल के अकॉर्डिंग नहीं है, तभी वो उस ग्राउंड पे उसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर सकता है, अदरवाइज उसको वो रजिस्टर करेगा। रजिस्ट्रेशन ऑन द डॉक्यूमेंटेशन बाय द रजिस्ट्रार, इफ ऑल डॉक्यूमेंट आर इन प्रॉपर ऑर्डर, द रजिस्ट्रार शैल बी रजिस्टर्ड ऑल द डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सबमिट बाय द कंपनी, की वो प्रॉपर फॉर्मेट में है तो वो कंपनी को सबमिट करेगा रजिस्ट्रार के अकॉर्डिंग। एंड फोर्थ वन, इश्यू ऑफ ए सर्टिफिकेट of incorporation, section 2 subsection 7, providing the registrar on the basis of document and information fill shall register all the document and issue of the certificate of incorporation in prescribed format। कि यहाँ पर क्या करेगा, जो रजिस्ट्रार है, यदि वो अब जितने भी हमने जो फाइल के साथ डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनको सेपरेट की हैं, अगर वो उससे सेटिस्फाई है, उसके अकॉर्डिंग वो सभी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हैं, तो उन सभी रजिस्ट्रार को वो सभी डॉक्यूमेंट और एक साथ में सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू करेगा, जिससे कंपनी आगे फर्दर प्रोसेस अपना रजिस्ट्रेशन करके आगे फर्दर जो हमारे जो रेलिवेंट जो फॉर्मिनेशन के लिए जो स्टेप्स हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, तो इन सभी को वो फुलफिल कर पाएगी। अलॉटमेंट ऑफ ए कोऑपरेटेड आइडेंटिटी नंबर CIN, उसको बोलते हैं CIN को बोलते हैं कोऑपरेटेड आइडेंटिटी नंबर, ऑन and form of the date mention of certificate incorporation, register shall be allot of the company CIN number। CIN shall be a distinct identity of a company and CIN number shall be also including in the certification of a company। Maintain and preserve all document in the registered office, the company shall maintain and registered office copy of the all documents and information as original file under the section 7 subsection 1 till the dissolution under this act। कि जब तक कंपनी अब वाइंडिंग अप नहीं करती, अपना डिसोल्यूशन नहीं करती, बंद नहीं करती, तब तक उन सभी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट को अपने रजिस्टर ऑफिस के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन और प्रिसीव करके रिजर्व रखने पड़ेंगे। सर्टिफिकेशन इनकॉर्पोरेशन इंक्लूसिव एविडेंस COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ब्रिंग टू द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस,
it become a distinct legal entity. It is a proof of registration existence of a company as a legal person and artificial person. The date mention of COI is deemed